Hello everyone. So students, today we are going to start chapter 10, Habitat and Adaptation. So this is the first video of this chapter. So children, in this video we are going to know about the about environment, habitats and its types, and adaptation and its types. So let's start it. So children, what is environment? So as we already know, living beings, जो भी living beings होती हैं, living organisms होते हैं, they all are different from each other. So they are different on the basis of their geographical climate and conditions. So the surroundings that affect an organism is known as its environment. तो जो भी हाँ जैसे हमारा जो environment है, हमारे जो surrounding है, जो हमारी life में हमें affect करता है, that is called our environment. So the natural environment or habitat is mainly made of two components. जो हमारे environment के two components होते हैं, that is biotic components and abiotic components. So let's know about the first biotic components, students. So biotic components are those components like our living components. जो भी biotic components होते हैं वो living components होते हैं of our natural environment. So they are divided into few groups like producers, consumers, scavengers and decomposers. So children, let's start from the first one, producers. The producers are known एज ऑटोट्रॉप ऑल्सो. ऑटो हम प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं. प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे मेक देयर ओन फूड. सो दिस इज द रीजन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स. Second is consumers. Consumers, we are consumers, those who depend on other things, other living things for their food. जैसे कार्निवोर है, हार्बीवोरस है, omnivorous है. So they all are depend on plants and animals for their food. So consumers को हम heterotrophs भी कहते हैं. Then we have scavengers. Scavengers are those animals that feed on dead remains of other organisms like hyena and crow. Then decomposers like bacteria and fungi, they feed on dead plants and animals. तो वो क्या feed करते हैं? Dead plants and animals. So these they take the nutrition from the dead plants and animals and then they release the nutrition from the dead remains, जो भी उन्होंने nutrition उनसे लिया है, then they release it in the soil और they also have to make the soil fertile also. So जो भी nutrition उन्होंने soil में release किया है, now this nutrition will be taken by the plants. ठीक है. तो ये प्लांट्स जो सॉइल में न्यूट्रिशन जो ऐड किया है बैक्टीरिया और फंगाई ने, तो ये उसको लेंगे एंड दे आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर देयर ग्रोथ. So children, all the biotic components are depend on each other in many ways. Like we are humans, we also depend on plants and animals for our food and other things. Animal also depend on plants for their food and shelter, and as well plants also depend on animals for pollination and dispersal of seed, etc. Then we have abiotic components. So abiotic components are the non-living components in a habitat. जो भी non-living components होते हैं like light, air, water, soil and temperature. So these are the abiotic components. So let's start from the first one, light. So children, as we know, light is very important for us also, for other living organism also. Like sunlight is the ultimate source of energy on the earth, that we know. So जो green plants होते हैं, they absorb the sunlight and prepare their own food with the help of the photosynthesis process. Some plants need more sunlight to grow. किसी प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है. सम प्लांट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती है, वो थोड़ी सी सनलाइट से भी अपना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द रीजन. डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं. सो light is also very important for all the organisms. Second is temperature. So children, temperature influences the distribution of plants and animal on the earth. As we know, जो temperature होता है in our earth, कहीं पे temperature बहुत ज़्यादा cold होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा hot होता है, कहीं पे moderate medium होता है. ठीक है. सो जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं वो भी टेम्परेचर के बेसिस, जो एनिमल्स और प्लांट्स कोल्ड रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं वो कोल्ड रीजन्स में हमें देखने को मिलते हैं.
कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट वेदर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं, सो वो हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड सम आर मॉडरेट एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो हमें नॉर्मली दिखने को मिल जाते हैं। सो देन वी हैव two types of animals, children. Then first is cold blooded animals and warm blooded animals. तो cold blooded animals और warm blooded animals में क्या difference है? So animals, those animals whose body temperature changes, जिनका body temperature changes होता है with the external temperature. जैसे एक्सटर्नल, जैसे बाहर का टेम्परेचर होगा उसके अकॉर्डिंग अगर वो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं, like reptiles and insects. On the other hand side, animals जिनकी बॉडी का टेम्परेचर does not affected with the external temperature, अफेक्ट नहीं करता है और दे कैन नॉट चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, तो इन एनिमल्स को हम लोग कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? बर्ड्स एंड मैमल्स, लाइक ह्यूमन ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, हम लोग भी वार्म ब्लडेड होते हैं। सो seasonal migration is seen in some animals and birds due to temperature difference. Some animals change their place and go to the another place, migrate करते हैं क्योंकि वहाँ का जो climate condition है वो उनकी favorable नहीं होता है, unfavorable होता है। Then we have air. So children, air around us is a mixture of many atmospheric gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide. So as we know, oxygen is very important and carbon dioxide is also very important. So oxygen we used to take we take as oxygen, ठीक है, and carbon dioxide we release it, and that carbon dioxide used by the green plants to make their own food in the photosynthesis process. So this atmospheric जो नाइट्रोजन होती है is fixed by the nitrogen fixing bacteria. See, जो plants होते हैं, नाइट्रोजन is present in the air, हम नाइट्रोजन को यूज नहीं करते हैं, नाइट्रोजन को यूज करते हैं प्लांट्स। कैसे? तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, वहाँ पे उनकी जो रूट होती है उसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको कहते हैं राइजोबियम, ठीक है। जो बैक्टीरिया होता है वो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है, जो प्लांट को बहुत हेल्प करता है उनकी ग्रोथ में, ठीक है। एंड moving air helps in pollination also, dispersal of seed also, for the reproduction of the plants. Then we have water. Water is also very essential for all the biotic components, as we already know water is play essential role in all organisms. सो वी कैन सी कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पानी अच्छी अमाउंट में भी मिल जाता है, लेकिन जैसे एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो होता है, जो एनिमल्स और प्लांट्स एक्वेटिक होते हैं जो पानी में ही सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी भी होती है जहाँ पे वाटर की, जैसे डेजर्ट है, डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है, वहाँ पे रेनफॉल भी बहुत कम होती है, तो वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो कम वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर अस ह्यूमन बॉडी ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 60% ऑफ वाटर, okay, so it is very important for us also. So next is soil. Soil is the material found on the uppermost layer of the earth. That हमें पता है जो soil होती है वो अर्थ का जो uppermost layer है, जो सबसे uppermost layer है, उसको कवर करके रखती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, गैसेस, लिक्विड्स और अदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, दैट टू टुगेदर सपोर्ट आवर लाइफ। तो सॉइल हैज़ मेनली 4 सब लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे ऊपर वाली लेयर को हम टॉप सॉइल कहते हैं, फिर उसके नीचे सब सॉइल आती है, देन पेरेंट मटेरियल्स होते हैं, फिर उसके नीचे बेड रॉक होते हैं। दिस इज द लेयर ऑफ द सॉइल। सो प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वो ग्रो करते हैं टॉप सॉइल में, यानी कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसमें ही प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ह्यूमस, यानी कि वहाँ पे फर्टिलिटी है, वहाँ पे मैन्योर है, ठीक है, वहाँ पे एयर है, वाटर है, अब और नीचे वो सब जो नीचे वाली लेयर है वहाँ पे सब नहीं मिलता है। So living organism like earthworm and snail make the soil loose, which help the plant root to grow deeper in the soil. So we have this much in this abiotic components. Then children, we have types of habitat and their adaptations. So we have 4 wide categories of habitat. First is terrestrial, second is aquatic, aerial and arboreal. So first one is terrestrial habitat. We have forest habitat, tropical one. The first one is tropical rainforest. So children, tropical rainforest, the rainforests are found near the equator. ये इक्वेटर के पास में आपको जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलता है। सो
इसको हम रेन फॉरेस्ट को भी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश होती है वो सबसे अच्छी होती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। सो मैनी स्पीशीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ट्रीज होते हैं बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा घने होते हैं, इनकी ब्रांचेस बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, स्प्रेड होती है, एक थिक कैनोपी लेयर बना देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो जंगल होता है, जो फॉरेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा डेंस और घना लगता है। और दैट कीप द सन, जो सनलाइट होती है उसको भी पेनेट्रेट करके, यानी कि सनलाइट जो होती है पूरी कवर हो जाती है और ग्राउंड तक, यानी कि सरफेस तक, नीचे तक जो होती है वो पहुंच ही नहीं पाती है। सो दिस मीन द मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं, दे लिविंग और अंडर दीज ट्रीज कम्प्लीटली और पार्शियली, इन ट्रीज के अंडर ही रहते हैं, कुछ ट्रीज के ऊपर रहते हैं। So, moreover, the warm temperature and abundance of the food, these forests create high competition among species. We have some adaptive features of animal. The first one is camouflage. Camouflage वो animals होते हैं जो अपने background के according अपना body का color change कर सकते हैं, like chameleon and leaf insects. So they protect themselves from their predators and also to catch their prey. Then we have choosing the perfect spot, like for example जो spider monkeys होते हैं, they live in the topmost part of the rainforest canopy, जहाँ पे less number of species होती है, तो उनको survive करने में बहुत easy रहता है. Then we have type of beak, like toucans, जो होते हैं, इनके जो birds होती हैं, इनके different types of beaks होती हैं, other birds भी होती हैं, so which help them to find their food easily. So then we have choosy eating. Some animals they have choosy eating, जो उनको रेस्ट्रिक्ट करती है themselves for a particular diet, जिसकी वजह से कोई इनका पर्टिकुलर डाइट नहीं होता है, तो इस वजह से ये इनको उनको फाइंड आउट करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव लीफ कटर एंड्स, जो क्या करती हैं, कुछ दे कैरी बिट्स ऑफ लीव्स एंड बरी दैम अंडरग्राउंड, फिर लेटर दे ईट द फंगाई एंड दैट ग्रो ऑन दीज लीव्स. Then we have conspicuous coloring. So these animals they have very bright color on their body, और कुछ marks होते हैं, कुछ spots होते हैं, stripes होते हैं, जो help करता है इनको to scare away their predators. Then small size, mostly जो green forest होते हैं ये suitable होता है for small size of animal, जो जैसे वी हैव स्लॉथ्स एंड मंकी, जिनका बॉडी वेट और बॉडी साइज बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, तो उनको ईजिली ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं. देन वी हैव स्लो मूवमेंट एंड साइकोलॉजी. सम एनिमल्स देयर बॉडी मूवमेंट इज़ वेरी स्लो. इनको कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनको डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत स्लो डाइजेशन होता है, और कभी कभी दिन और कभी कभी महीने भी इनको लग जाते हैं टू डाइजेस्ट देयर फूड. देन नेक्स्ट इज नॉक्टर्नल हैबिट जो होती है. दीज एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट. ये एनिमल्स जो होते हैं वो रात में एक्टिव रहते हैं, और दिन के समय पे एक्टिव नहीं होते हैं, यहाँ पे सोते हैं. सो इसकी वजह से ये लोग जो होते हैं रात में एक्टिव रहते हैं, हंटिंग करते हैं, जिसकी वजह से इनको कंपटीशन भी कम मिलता है. इनके जो प्रेडेटर्स होते हैं उनसे भी अपने आप को सेफ रख सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं. वी एग्जाम्पल बैट्स एंड बैंडिकूट्स. देन वी हैव सम प्लांट्स एडेप्टिव फीचर ऑल्सो. जो यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं फॉरेस्ट एरिया में, रेन फॉरेस्ट में, वो वैक्सी ड्रिप ट्रिप लीव्स होती हैं, थोड़ी सी स्मूथ होती है, जिसकी वजह से जो रेन वाटर होता है जो इजीली स्लिप हो जाता है लीफ में से, और जिसकी वजह से लीफ पे पानी स्टोर नहीं होता और लीव्स खराब नहीं होती एल्गी लगने की वजह से. जो नेक्स्ट इज जो लीफ का साइज होता है दैट इज़ वेरी लार्ज, जिसकी वजह से जो सनलाइट होती है वो अच्छे से एब्जॉर्व कर पाते हैं. इफिफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ट्रीज पे या वो ट्रंक पे या ब्रांचेस पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, बट दे डू नॉट टेक देयर फूड फ्रॉम देम. वो सिर्फ उनके ऊपर रहते हैं, और टू कैच द सनलाइट, और एयर में से दे टेक द मॉइस्चर एंड न्यूट्रिशन. और इफिफाइट्स प्लांट्स को हम एयर प्लांट्स भी कहते हैं. सो चिल्ड्रन, वी हैव दिस मच ओनली इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड टेक केयर.